Good morning, students. Let's continue with our topic, that is fractions. Let's do some questions related to fractions. We already discussed about what is fraction and the types of fractions, and hope you all understand this concept. And now we will discuss some questions. First question is there, filling in the blanks. First part, fractions with the same denominator are called dash fractions. We already studied that जिसका सेम डिनोमिनेटर होता है उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस, क्लियर. नेक्स्ट वन इज हियर, अ फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज लेस देन 1 इज कॉल्ड, जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है वो कौन से फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. If the numerator is greater than the denominator, then the fraction is, कौन सा फ्रैक्शन होगा वो, प्रॉपर और इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर, yes, is an improper fraction. In fraction 5/9, 5 is the, 5 क्या है इसमें, न्यूमिनेटर. अपर साइड क्या होता है, न्यूमिनेटर, और डाउन साइड, and 9 is the denominator. Yes, 9 is the denominator. Clear, students? Second question is here, write the fraction for the shaded parts. अब आपको fractions write down करने हैं. shaded part का fraction क्या होगा, कितने पार्ट शेड किए हुए इन्होंने, 1, और टोटल पार्ट्स 1 2 3 4. so fraction will be 1/4. clear? Here how many parts are shaded, 2, and total parts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 out of these 2 are shaded, so fraction will be 2/15. and in this how many parts are shaded, 1 2 3, and total 1 2 3 4 5 6 7 8. 3/8. Total parts are 8 and 3 parts are shaded. Clear, students? Next question is there, classify the following fractions as proper, improper, mixed और unit. आपको कुछ fractions given है और आपको ये find out करना है कि इनमें से कौन से fractions proper हैं, improper हैं, unit है और mixed हैं. Okay, so first fraction is given, that is 1/9. 1 से क्लियर है कि ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन. यस, यूनिट फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज देयर, 17/21. 17/21. दिस न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. यस, प्रॉपर फ्रैक्शन. Next one, 58/58. We already learnt or studied that those fractions which have the numerator or denominator equal or greater than, so this is called improper fractions. जिनमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं वो फ्रैक्शन भी कौन से होते हैं, improper fractions. So improper fraction. Clear? Next one is here, 1 9/10. What is this, कौन सा फ्रैक्शन है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन. यस, होल नंबर एंड फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, so this is mixed fraction. Clear? Next, 43/21. Here numerator is greater than the denominator, so this is called improper fraction. Here 3/7. last question is here, 3/7. so 3/7, which type of fraction is there, proper or improper? Yes, proper fraction, because the numerator is less than the denominator. Clear, students? Next concept is there,
कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज गिवन है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, वी कैन डिवाइड दिस नंबर। सो 7 18 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 2 ज़ा 40 and 4. So what will be the mixed fraction of this number, this fraction? Yes, 2 4 upside and downside 7, like this we will write 2 4 by 7 will be the mixed fraction. Clear students? Next concept is here, convert मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है और आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 5 8 इन 2 की तो क्या होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम क्या कर देंगे इसको प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा ऐड। सो 5 8 40, 40 + 1 41 और बाय में 5 एज इट इज। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड आउट और राइट डाउन द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपको ये नंबर गिवन है, आपको इसके फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। वी ऑलरेडी नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम इक्वल सेम नंबर से, सेम प्राइम नंबर से इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अपसाइड और डाउन साइड, लाइक दिस। स्टार्ट फ्रॉम 2, व्हाट विल बी द आंसर, 4/18। सो फर्स्ट तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/18। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3/3। सो 2 3 6 एंड 9 3 27। नेक्स्ट के लिए हम 4 पे जाएंगे, 4/4। सो 4 2 8 एंड 9 4 36। सो दीज आर द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/9, 4/18, 6/27 एंड 8/36। नेक्स्ट कंसेप्ट इज देयर दैट अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, सी द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर को चेक करना है। इफ़ द डिनोमिनेटर इज इक्वल और सेम, वी कैन से सेम है अब आपके डिनोमिनेटर, देन राइट डाउन अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शंस। तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे और हम जब सबसे छोटा जो हमारा न्यूमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर देंगे। सो कैसे अरेंज होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा इनमें से, 1/9, देन 2/9, 3/9, 4/9 एंड 7/9। क्लियर? First step will be to see the denominator, and if the denominator is same then write down according to the fractions. सबसे छोटा पहले, then उससे big, then bigger, biggest, like this in ascending order. Clear students? In case second, if the denominator is not same, in previous question our denominator is same बट इन दिस क्वेश्चन हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है। सो हमारे इसमें क्या स्टेप होंगे, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, सी द डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर्स देखा सेम नहीं है। इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ नॉट सेम, फाइंड आउट द एलसीएम। हमें इनका क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। हाउ वी विल फाइंड आउट द एलसीएम, 1/4 एलसीएम हम लेंगे 4 6 8 12 एंड 2 का। एलसीएम ऑफ 4 6 8 12 एंड 2 इज़ 24। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 24। नाउ अब हमें 24 डाउन साइड करना है इनके, बिकॉज हमने डिनोमिनेटर सबका सेम करना है। तो 24 के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। सो ये क्या हो गया, 6/24। फर्स्ट डिजिट क्या किस में कन्वर्ट हो गया, 6/24। नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम, 24, सबके 24 डिनोमिनेटर्स हो गए हैं। कैसे किया, इसे हमने सेम न्यूमिनेटर और सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया इस फ्रैक्शन को। 4/4 से किया, यहाँ 20/24 हो गया, लाइक दिस। सो नाउ जो हमें नंबर्स हमारे मिले हैं वो क्या हैं, दीज नंबर्स। सो अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा क्या होगा, 6/24, देन 12, देन 14, then 15 and then 20. So this will be the answer. बट ये हमारा आंसर नहीं हुआ, हमारी स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग थी,
इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर? सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट थी 6/24 को हमने क्या लिया था 1/4। 6/24 की क्या वैल्यू थी 1/4 और 12/24 की 1/2। देन 14/24 7/12 के इक्वल था और 15/24 5/8 एंड देन लास्ट वन 5/6। सो दिस विल बी द आंसर। इस स्टेटमेंट की हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी दिस वन 1/4 5/6 5/8 7/12 एंड 1/2 और हमने इसी का ही चेंज करना था और असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना था। सो आंसर हमारा क्या आया 1/4 1/2 7/12 एंड 5/8 एंड देन लास्टली 5/6। दिस विल बी द आंसर इन केस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया सबसे छोटा देखा ये चेंजेस करने के बाद और इन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे सबसे बिगेस्ट नंबर bigger to smaller. Clear students? Next question is there add and write the answer in the lowest form. फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3/24 प्लस 11/24। अब इन दिस क्वेश्चन द डिनोमिनेटर इज सेम। सो हमें चेंज करने की या एलसीएम लेने की नीड नहीं है बिकॉज प्लस के लिए या माइनस के लिए फ्रैक्शन में आपका ये डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। क्लियर? इफ़ सेम नहीं है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें इसका एलसीएम लेके इन्हें सेम करना है देन वी कैन ऐड अदरवाइज वी कांट ऐड इन अ फ्रैक्शन फॉर्म इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल और सेम यू कैन सी। क्लियर? सो इन दिस क्वेश्चन डिनोमिनेटर्स आर सेम सो वी कैन ईजिली ऐड 3 + 11 11 + 3 क्या होगा 14। सो 14/24। अब आपको लोएस्ट टर्म में राइट करना है। सो हम देखते हैं कि ये दोनों किसी एक टेबल के मल्टीपल हैं तो हम इसे कट कर देते हैं। 14 एंड 24 दोनों 2 की टेबल पे कट हो जाते हैं। सो 2 7 14 होता है एंड 2 की टेबल पे 24 12 पे जाता है तो 7/12 7/12 विल बी द आंसर। 3 1/9 प्लस 1 5/9। अब इन दिस क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन इज गिवन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम किस में चेंज करेंगे नॉर्मल में। सो हाउ वी आर चेंजिंग 9 × 3 27 27 + 1 हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन 1 प्लस ऐड कर देते हैं। क्लियर? सो 9 3 = 27 27 + 1 28 सो 28/9। क्लियर? एंड इन दिस 9 1 9 9 + 5 14 सो 14/9। नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम सो नो नीड टू टेक एलसीएम और एनीथिंग एल्स सिंपली हम इन दोनों की प्लस करेंगे। 28 + 14 क्या होता है 42 सो 42/9। अब 42 एंड 9 बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 3 सो 3 पे दोनों कट हो रहे हैं। इसकी हमें लोएस्ट फॉर्म बतानी थी सो 3 पे दोनों कट हो रहे हैं क्या आएगा 14/3। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम इसकी और भी लोएस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। हाउ 14 को 3 से डिवाइड करके। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो हमने इसको आगे नहीं किया सॉल्व बट अब इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो 14 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 4 12। सो इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेंगे 4 2/3 4 2/3 विल बी द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें गिवन थी स्टेटमेंट तो हमने आंसर भी किस में निकाल दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। गेटिंग माई पॉइंट? Now in this question we have to subtract. Last question we have done the addition and in this subtraction we have to do. So here denominators are same. We can easily subtract 5 from 13. So 13 - 5 क्या होता है 8 8/21। ये कट नहीं होता है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही बनेगी। सो आंसर विल बी द 8/21। नेक्स्ट इज देयर मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है पहले हम इसको सिंपलेस्ट बनाते हैं। 8 1 8 8 + 5 13 सो 13/8 8 1 8 8 + 3 11 11/8 सो 13 - 11 क्या होता है 2 सो 2/8। आपको पता है 2 की टेबल पे 8 जाता है तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई 1/4। सो आंसर विल बी द 1/4। Clear students? In case of subtraction, previous question was of addition and this one of subtraction. Hope you understand the concept. Bye, take care.